the torque? What is the torque? Torque, it is the turning effect of force is known as the torque. Try to understand what is the torque. Torque plays the same role as force in the linear motion, the same role played by the torque in rotational motion. Here torque means the turning effect of force. Turning effect of force is known as torque. Turning effect of force is known as the torque. मतलब force which produces the turning effect, that is known as the torque. ऐसा force जो turn कर रहा है, this is not the torque, this is the torque. Clear? The turning effect of force is known as the torque. ऐसा टॉर्क मतलब फोर्स जो टर्न कर दे, दैट इज नोन एज द टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. टॉर्क को मेजर कैसे करते हैं? इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट एट पॉइंट O, देन फोर्स F एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, इट इज नोन एज द टॉर्क. सो टॉर्क को हम टाउ से शो करते हैं. टॉर्क टाउ इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस सिंबल है टॉर्क. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. It means here torque tau is equal to F into D, force and the perpendicular distance from the axis of rotation. Tau SI unit, it is Newton meter. SI unit is Newton meter. तो टॉर्क और वर्क की सेम यूनिट, डायमेंशन भी सेम होता है. सो फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हियर इफ force does not act right angle, suppose the force acts at a particular angle theta from the radius vector here, this is 4, suppose point it is 3, but the force acts at an angle theta, then component of the force F cos F sin theta and F cos theta. Torque will be here, torque tau it is equal to, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin theta and this perpendicular distance, ध्यान रखना फोर्स कौन लग रहा है? F sin theta. Perpendicular distance is R, so we write as F sin theta into R. So tau is equal to R F sin theta. In vector form it is written as tau is equal to R cross F. Tau is equal to R cross F. अगर हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को फोर्स इधर बढ़ा दें और मान लेते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हियर दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 90 डिग्री, लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d,
if this perpendicular distance from the axis of rotation, then force and the perpendicular distance, here you see, if line of action किसी डायरेक्शन में बढ़ा दें और यहाँ पे perpendicular distance को अगर हम d ले लें, if it is theta, then this will be also theta. Then what will be the, here suppose it is n in triangle OPN, in triangle OPN, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse r, means that is d upon r, d upon r. So d is equal to r sin theta, and here अगर हम यहाँ तो या तो इसका एक कंपोनेंट ले लें, इस जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन इधर, इधर हम परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट हो परपेंडिकुलर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो हम फोर्स जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ना लें, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, तब हमारे पास टॉर्क टाउ इज इक्वल टू F into d, and F into d is equal to r sin theta. So again tau is equal to here rf sin theta, and this is r cross f. Here if theta is equal to 0, since this tau is equal to rf sin theta, if theta is equal to 0, then what will happen? This tau is equal to rf sin 0, that is 0. No torque acts. अगर r और f दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएं तो कभी कोई फोर्स, नो टॉर्क विल एक्ट. अगर ये दरवाजा है, अगर ये r है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये दिस इज द r, अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं तो घूम नहीं सकता, ऊपर जाएगा. बस समझ रहे हैं? तो फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा जो यहाँ पे लगते हैंडल, ये हमेशा दूर लगाया जाता ताकि आर बढ़ जाए. ऐसा नहीं पीछे लगाएंगे, हमेशा एकदम किनारे लगाते हैं. क्यों? खोलने में इजी हो जाता है. बिकॉज फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस हमारा ये, इसीलिए इस हैंडल को दूर रखा जाता है. It is handle is always kept at the end of the tool, एकदम end पे रखा जाता है. तो force and the perpendicular distance from the axis of rotation, तो r when theta is equal to 0, then theta is equal to 0 means we are applying the force in this direction, and r is this in this direction, r and f both in the same direction, no torque acts. ये घूम नहीं सकता. बस समझ आ रही है? तो no torque acts, torque is equal to 0. If theta is 90 degree, it means if you apply the force along this theta 90 degree, applying the force at the right angle, and this is r, angle is 90 degree, so force and the perpendicular distance, in that case maximum torque will act, and this is the reason we always apply at the right angles. If theta is 90 degree, if theta 90 degree, then torque tau is equal to rf sin 90. It means tau maximum. In that case, tau is maximum. Is it clear to all? Torque, इस टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. सेम फोर्स हो लेकिन टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है. अगर हैंड पाइप से हम पानी निकालते हैं तो हम टॉर्क लगाते हैं, फोर्स नहीं लगाते हैं. हैंड पाइप को देखिए ना, हैंड पाइप ऐसे दबाते हैं तो फोर्स लगाते हैं. अगर वही हैंड उसका हैंडल निकाल दिया जाए तो ऐसे लगाएंगे. दैट विल बी डिफिकल्ट इन दैट केस. मतलब पानी हम खींचते ऐसे ही हैं ऊपर, लेकिन अगर यही हैंडल निकल जाए तो कह दिया जाए कि पानी निकालो तो ऐसे निकालोगे. टॉर्क
फोर्स और आर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो होगा क्या उस केस में टार्क टर्निंग हम टर्न बहुत बहुत इतना स्लो कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। सो इन दैट केस द टार्क इफेक्ट ऑफ टार्क इज जीरो। तो हैंड पाइप में इस दरवाजे के रिंच देखे हो ना, रिंच में भी अभी टार्क ही लगाते हैं, उसमें इसलिए टार्क लगाते हैं कि आग बढ़ा देते हैं। अगर ट्रक वगैरह का नट खोलना है इतना बड़ा बना देते हैं, ट्रक का नट देखे हो कभी तो बहुत बड़ा सा होता है और छोटा सा बच्चा भी लटक करके खोल लेता है, क्योंकि फोर्स वही आर बढ़ जाता है। आर अगर बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये हमारा होता है यही टार्क। एक होता है कपल ऑफ फोर्स, मतलब टार्क ड्यू टू कपल, तो उसके लिए हम कपल मीन्स पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द टू डिफरेंट पॉइंट, then that is known as the couple of force. So torque moment of force due to couple, here you see couple of force is what turning effect. Torque is clear to all. Torque means turning effect of force. couple of force होता है a pair of equal and opposite force, a pair of equal and opposite force pair of equal and opposite force acting on a body at two different points. A pair of equal and opposite force acting on a body at two different points is known as the couple. Here a pair of दो फोर्स मिल करके, here to open this door we apply the torque, only single force is required, single force, no the couple of force is required, but couple of force, here you will see torque due to couple of force, torque due to couple of force, torque due to couple कहते हैं, torque due to couple. So what will happen if you have this is force, body fixed at point O, this is force F, here it is A and it is B. ध्यान रखना कि torque is equal to, यहाँ पे फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमारे पास टार्क इज इक्वल टू टार्क ड्यू टू कपल फोर्स इनटू AO प्लस फोर्स F इनटू AO प्लस F इनटू BO, F इनटू BO, टार्क टाउ इज इक्वल टू F AO plus BO, pair of equal and opposite force acting on the same body at the two different points. AO plus BO it is equal to AB, so F is equal to AB. अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी। फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ध्यान रखना टार्क टाउ इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये हमारा होता है टार्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स। दरवाजा खोल देना सिंगल फोर्स,
तो किसी का कान ऐंठ देना कपल ऑफ फोर्स है। कान एक हाथ से नहीं ऐंठ सकते, दोनों हाथ लगेगा तब ना होगा। ये टार्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स। अभी हम दरवाजा खोल रहे हैं तो सिंगल फोर्स लगा, लेकिन किसी का कान ऐंठे तो सिंगल फोर्स से कान ऐंठे लगा, डबल एयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक ऊपर लगेगा कि नीचे, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इट इज क्लियर? इट मीन दिस इज द पेयर ऑफ, ये हमारा कपल ऑफ फोर्स है। इट इज क्लियर टू ऑल? कपल ऑफ रिंच जो होता है ना, रिंच में भी हम एक तरफ भले टार्क लगाते हैं, लेकिन जहाँ पॉइंट पकड़ता है वहाँ पे भी कपल ऑफ फोर्स लगता है। ऊपर नीचे दोनों पकड़ेगा तब न लगेगा। तो ये सब यही इसीलिए हमारे तार का दूसरा इंपॉर्टेंस है कि दो फोर्सेज रिक्वायर्ड। वो जो रेंज का एक तरफ टूट जाए जहाँ से फंसाते हैं, कभी जिंदगी में होगा, नट नहीं कर सकता, क्योंकि कपल ऑफ फोर्सेस। तो इसीलिए कोई अंगूठा न लगाए, किसी का कान ऐंठना चाहे, संभव है? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये पेयर ऑफ इक्वल दोनों पॉइंट पे लगे। ये बात समझ आ रही? दिस इज द टार्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब देख लेना, ये मोमेंट जो होता है दो तरह का होता है। मोमेंट ऑफ, ये जो टार्क होता है, टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिए। टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। ऐसा बल जो घुमा दे, बल आघूर्ण हिंदी में कहते हैं। इसकी हिंदी है मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब टार्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। मीन्स हिंदी में कह लेते हैं बल आघूर्ण। घूर्ण माने घुमा दे, वह फोर्स जो घुमा दे उसे हम टार्क कहते हैं। तो यही हमारा हो गया टार्क। अब टार्क हमारा दो तरह से घुमाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को, क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन पॉजिटिव। ध्यान रखना, क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखना, ये कौन सा मोमेंट है? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर ले जा रहा है एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों पॉजिटिव दिया गया, ध्यान रखना। मैं पूछना था नेगेटिव क्यों नहीं हो गया? समझ में आ रही बात ना? हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन पॉजिटिव। एक आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन तब बनती है इक्वल, जब क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाता है, तो बॉडी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इतनी बात समझ में आ गई। क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन पॉजिटिव। नाउ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, if a body is free to rotate, note down, if a body is free to rotate about a fixed point, then the body is said to be in rotational equilibrium. Then the body is said to be in rotational equilibrium if the algebraic sum of the moments about the fixed point is 0. If the algebraic sum of the moments about the fixed point is 0.
Here suppose a body AB is free to rotate about O, free to rotate about O. Two forces F1 and F2 at A and B. Then what will happen? You have to see if this is D1 and this is D2 distance, F1 into D1 ये क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, एंड F2 into D2 ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा. तो algebraic sum of the moment, तो क्लॉकवाइज will be right as the एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिख लें. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट it is equal to F1 D1. Clockwise moment it is F2 D2. In equilibrium position, the algebraic sum of the moment means F1 D1 minus F2 D2. It is equal to 0. In equilibrium position, the algebraic sum of the moment हमने बताया कि algebraic sum of the moments about a fixed point is 0. एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो algebraic sum of the moment हमारा 0 होता है. F1 D1 is equal to F2 D2 हो जाएगा ना. algebraic sum एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव. तो this implies that F1 D1 it is F2 D2. This implies that the anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. Clear? So anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. So anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. Here is the rotational equilibrium. तराजू देखे होंगे. वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जब होता है तभी हम सामान लेते हैं. दोनों साइड इक्वल हो जाता तब हम सामान लेते हैं. तो उसमें प्रॉब्लम क्या करते हैं तराजू वाले कि जैसे होल एकदम बीच में होना चाहिए, 1-2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं. और अब हमारे पास ये जिधर अभी मान लो यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पर थोड़ा भी सामान रखेंगे तो लटक जाएगा ना. तो वो सामान उधर रखते हैं जिधर बाट दूसरी तरफ रखते हैं जिधर से उन्हें बेनिफिट मिले. तो अगर उन्हें कह दिया जाए बाट इधर रख करके तोड़िए तो नहीं तोड़ते हैं, सामान ज़्यादा रखते हैं. तो ये इसलिए हम लोग कभी एक्चुअल मेजरमेंट लाइफ में नहीं पाते. एक तो उनका जो वेट होता है वेट में ही कभी कभी ईंटों में रख करके तोड़ देते हैं. हाँ, अभी तो सामान लेने से 2 बैगन रख दिया, कहा कि 1 पाव है. तो वो भी है, अब ले करके भागना है, कौन वहाँ मेजरमेंट लगाए एक्यूरेसी. तो ये चीज़ है तो हम अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज लगा लेते हैं कितना होना चाहिए. अच्छा, वो हमें अधिक देते हैं, वो हमें कभी कम नहीं देते. कोई सब्जी वाला जब भी है इतना करके ही देगा, लेकिन उसके बाद भी 100-200 ग्राम मार देता है हर किलो. उसका रीजन क्या है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बायस कर देता है. लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्या है, एक तो बाट में गड़बड़ी है, दूसरे नंबर पे जो बीच में होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो बीच में नहीं होता. वो थोड़ा 1 सेंटीमीटर भी गया तो अंदर आएगा ना. हाँ, क्योंकि अगर जरा सीधा एकदम बीच में देखो है और जरा सीधा ले आओ तो देखो लटक गया, ऐसे हो गया ना. तो अब थोड़ा सा ही पहले, अच्छा उनका पहले डांडी ऐसे रहती कर दो, थोड़ा सा रहेगा उसे रख देते सब चीज. ये प्रॉब्लम होती है कि 100 ग्राम ऐसा. तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का हमारे डेली लाइफ में भी एप्लीकेशन है. समझ में आई बात?
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय द टार्क। वर्क डन बाय टार्क, work done by torque. Here, suppose four sides distance is r. If body moves from A to B, if the angular displacement is delta theta, suppose a force acts, suppose a force F acts at point A. If the small displacement AB it is equal to delta S, means AB it is equal to delta S. Linear displacement ध्यान रखो. If angular displacement it is equal to delta theta, if angular displacement it is equal to delta theta, angular displacement ये हमारा ए भी हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी डेल्टा एस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर ले लो यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डेल्टा थीटा। वर्क डन is equal to force at the displacement, so F into delta S, and you know this angle is equal to R upon radius, so delta theta is equal to delta S upon R, so delta S it is equal to R delta theta. Then work done W is equal to F के प्लेस पे लिख देंगे R डेल्टा थीटा, ये डेल्टा S के प्लेस पे लिखेंगे R डेल्टा थीटा F R डेल्टा थीटा। अब देख लेना, if force and the perpendicular distance is R, तो वर्क डन हमारे पास W is equal to torque into delta theta, means work done by the torque means the torque into the work done by the torque is equal to torque into the angular displacement। ध्यान रखना torque उसमें था linear force and the linear displacement, force and the linear displacement। यहाँ पे work done by torque means हो गया it is equal to torque into the angular displacement। When variable torque acts, when variable torque acts, in that case here dw upon delta t अगर डिवाइड कर दें स्टार डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, then and if डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखे हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो इस केस में ये हो जाएगा dw by dt it is equal to tau and delta theta upon d theta by dt, d theta by dt। Here rate of doing work is known as the power, rate of doing work is known as the power, and d theta by dt it is omega। It means power is equal to torque into the angular velocity, torque into the power is equal to torque into the angular velocity, torque into angular velocity।
और वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन हमारा होता है एक ऐसे ले लेते हैं डी डब्ल्यू एंड हियर टाउ डी थीटा एंड थीटा 1 to थीटा 2 ये फॉर वेरिएबल फोर्स और वेरिएबल फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स है वेरिएबल टॉर्क ध्यान रखना अगर टॉर्क हमारा वेरिएबल है तो उस केस में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं टाउ डी थीटा कभी टॉर्क कुछ लगा कभी कुछ लगा लगातार थोड़ा थोड़ा चेंज होता है तो हम सबको ऐड करते हैं फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 डी थीटा ये हमारा होता है वर्क डन बाय द टॉर्क पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसी तरह से हमारा पास आता है एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम तो हो गया और तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क हमारा आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम Here angular momentum, moment of linear momentum is known as the angular momentum. Try to understand. Moment of linear momentum is known as the angular momentum. Moment of linear momentum is known as the angular momentum. एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं इट इज इक्वल टू द मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू मोमेंटम P into the perpendicular distance from axis of rotation। कहने का मतलब कि अगर ये बॉडी हमारे पास है इसका मास m है अगर लीनियर वेलोसिटी v है तो मान लेते हैं इसका मोमेंटम p है और body is free to rotate about a particular axis then ये distance हमारे पास हो जाएगा L is equal to P into D। moment of linear momentum जब घूमना शुरू कर दे moment of linear momentum ये momentum है और momentum जब घूम रहा है particular axis के about तो moment of linear momentum is known as the angular momentum। It is equal to the momentum into the perpendicular distance from the axis of rotation। हमेशा perpendicular distance कंसीडर किया जाता है। अब जैसे अगर हम इसको किसी x y में एक्सिस में ले लें here momentum is p this angle is theta it will have p sin theta it is p cos theta this is r। यहाँ पर अगर एक फोर्स लग रहा है मोमेंटम अगर पार्टिकल मास m है इसका तो मोमेंटम इट इज p किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो ये हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू p sin theta into r p sin theta into r तो L is equal to r p sin theta तो हम लिखते हैं L is equal to r क्रॉस p वेक्टर के फॉर्म में r क्रॉस p। यहाँ भी देख लेना if theta is equal to 0
there is no angular momentum. The same happens. मोमेंटम हमारा इस डायरेक्शन में है और r है तो r 0 है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम होना नहीं। इज इट क्लियर? सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, then L is equal to 0, and if theta is 90 degree, theta is 90 degree, then L is maximum. Here you see, if we increase the line of action, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ले लें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d ले लें, तो अगर ये थीटा है तो भी थीटा हो जाए, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L इट इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जैसे हम टॉर्क में लिए थे साइन थीटा, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे तो D हो गया 90 डिग्री। तो अगर हम एम ले लें, यहाँ पे O M ले लें, इन ट्रायंगल OMN, इन ट्रायंगल OMN अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इट इज इक्वल टू D अपॉन R। तो D इज इक्वल टू R साइन थीटा को हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू P R साइन थीटा, एंड द सेकेंड वी गेट R P साइन थीटा। तो इसको हम L इज इक्वल टू R क्रॉस P इस तरह से लिख सकते हैं कि चाहे हम P का कंपोनेंट ले लें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, या डायरेक्ट भी ले लें और डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, तो ऑलवेज वी गेट L इज इक्वल टू R क्रॉस P। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P। व्हाट विल बी द डायरेक्शन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा R क्रॉस P अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखे थे कि अगर इस तरह से वेक्टर हमारे पास है, एक A है एक B है, तो अगर A क्रॉस B है तो परपेंडिकुलर, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। इसी तरह से जब हम इसमें लेंगे R क्रॉस P, ट्राई टू अंडरस्टैंड, R क्रॉस P, ये हमारे पास R की डायरेक्शन इधर है, P हमारे पास इधर है, तो R क्रॉस P करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरह से थंब की डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हम जब नट को खोलते हैं, पेन होता है ना हमारे पास, जब हम खोल